Assalamu alaikum, beautiful people. Today is day 2 in Port Blair, but technically day 1. तो हम लोग आज बाहर निकले हैं घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। और आज का वेदर बहुत अच्छा था, कल बारिश थी तो ठंडा था। और ये रही मैं, एंड दैट्स माय मामा बेर। ये यहाँ का आबरदीन बाज़ार है, एंड बेसिकली इट्स लाइक ऑल दीज थिंग्स दैट यू वांट, ग्रॉसरीज हो गया या फिर कपड़े वगैरह वगैरह सब कुछ मिलता है। उसी के बाद यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं जेल पे, काला पानी जेल या सेलुलर जेल। तो इसकी हिस्ट्री सारे लोगों को पता ही होगी, बट जिनको नहीं पता है, ये यहाँ पे वीर सावरकर पार्क है, जस्ट ऑपोजिट टू सेलुलर जेल। दिस वाज आल्सो टू कमोमरेट द फ्रीडम फाइटर्स of our nation. And I was about to tell you about the cellular jail. So this is all the details on that. जैसा कि आप देख सकते हो, 11 फ़रवरी 1979 को हमारे तब के प्राइम मिनिस्टर ने इस्टेब्लिश किया गया था। दिस इज़ वेरी आर्किटेक्चरली बिल्ट, एंड इट्स to be said that it is one of the most beautiful jails in India. Although jails are not pretty, nor the punishments that were given during that time were pretty, but the architectural mindset that was made for this jail is absolutely worth watching. So these are all the helmets that were used by the Japanese soldiers. There was some bit of Japanese influence here, as in they were a part of the invasion here. And these are the locks that were used, and these are the uniforms that were worn by the political prisoners, and these are those hatkadis that were put on the neck. So I tried to capture as many glimpses as I can. That was my dad, that's my mom. And basically there's a lot of information on this jail. Is how the jail looks from the outside, and the concept of basically the jail is that it is made spread as 7 spokes of the bicycle wheel. There are 663 cells in the jail, which were built specifically for solitary confinement. And yeah, as years progressed, they added more and more cells to it, and I think totally they added 138 cells later on. And they also have mentioned the reason why it was called as Kalapani. Basically it means the time of death. Kal means time, and it is the place of death from where they prisoners will never return. So yeah, it is a very beautiful architectural piece, although the prisoners themselves went through a lot at that time. As you walk to the next particular section, there was a list of all the prisoners, and the reason why they were jailed was also mentioned on the top. And this is the outside, just we've stepped outside, and that's my husband. As you can see behind my husband, there is all the cells that of the jail, and my husband was trying to pose. So this is one of the work sheds that they have preserved, where they used to extract oil, and all the workers did some sort of odd jobs to survive here in the jail. And this is one of the, I think this is one of the what do you say, one of the oil processing mills that they had. And there were a lot of guides to help you out. I don't remember the exact fees of the jail. I think it was just 100 rupees or something. But yeah, then I don't know about the guides because we didn't take any guide, so I don't know if they charged or not. And this is how the prisoners were punished, and they were locked. As you can see in the bottom, they were locked and tied above, and also tied near their bum with a rope, and they used to be punished a lot. एक बार हाथ और पाँव लॉक करने के बाद पीछे बटक्स की ओर क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ वगैरह रखा जाएगा, और कॉटन क्लॉथ
जिसको आइदर एक बेल्ट या फिर एक रस्सी वगैरह से रैप किया जाएगा। ओके, उसके बाद पनिशमेंट स्टार्ट होगा। अब जो भी पनिशमेंट देता है, ब्रिटिश ऑफिसर हो, जमादार, टेंडल, पेटी ऑफिसर, कंटिन्यूसली एक क्या होता है, घोड़े पड़ने से क्या होगा, अगर स्किन पड़ जाए, चमड़े पड़ जाए, बिल्कुल डबल पेट होगा, पीछे ले नहीं पाएगा। So this, where my brothers walked inside, that was where they used to hang people, and this is one of the cells, where inmates were kept. So as your punishment was, I think they had segregated the jail accordingly. The food used to be given through that passage, and you can see this entire scape was the jail. From that side to this side, and it is huge. Trust me, it is huge. So if you think that the architectural plan only is the thing to marvel, then you have to come to the rooftop and see the view from it. On one side there are coconut plants, totally green, and on the other side there are some worksheds that they have made right now. Later on, this was not the case earlier, and behind that is complete beautiful sea with islands showing. Guys, we just finished the visit to the jail, and now we are going to Chidiya Tapu. After that we will be going to the beach, and we'll be ending the day with the light show again at the jail. So full circle of life, and for the first time I have to tell you that this is the first jail that I felt was so beautiful, and the view on the top, as you guys saw, was really, really beautiful. I really enjoyed it. This is Sumit. He's our travelogue right now. He's taking us everywhere. If you come to Andaman, please contact him. I'll put his number in the description box so you guys can reach out to him. He has a knowledge like nobody else. He's a dictionary over here. So if you come here, reach out to him. Sumit, मैं आपका नंबर डाल दूंगी. जी जरूर. लेफ्टिनेंट गवर्नर ही रूल करता है यहाँ पे. अच्छा. टेरिटरी. और ये स्कूल्स वगैरह पूरा रिकॉग्नाइज्ड बाय पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है ना? नहीं सर, कॉलेज एक है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का. पहले था, अभी अंडमान का खुद का कॉलेज है. लॉ कॉलेज हो गया ना कॉलेज जो है. हां, अंडमान लॉ कॉलेज है, और एक जेएनआरएम जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय बोल के एक कॉलेज था जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के ब्रांच था. लेकिन अभी अंडमान का खुद का कॉलेज हो गया यहाँ. अच्छा, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? फिर मेडिकल कॉलेज भी 5 साल पहले खुला यहाँ पे. ओके. गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भी है. पूरा ऑलमोस्ट सिटी तरह ही है सर. पहले तो उतना था नहीं. सिटी मतलब ये 15 किलोमीटर के अंदर में ही सिटी है सर पूरा. हाँ, उसके बाद पूरा विलेज एरिया में पहुंचते हैं. जो कौन है शावर कौन है? पहचानो ना, तुम्हारी मर्जी. हां, कल क्या बने पापा वो छोटी सी. हां हां हां, 4 स्टार. बॉलीवुड जो है फिशिंग में डिपेंडेंट है. वो यहाँ पे मार दे वो लोग. हाँ, तो वो लोग जो है सुकुकुम्बर होते हैं ना सर, सुकुकुम्बर सी एनिमल होता है, उसका तलाश में वो लोग जो है मतलब अंडमान सी के बॉर्डर में घुस जाते हैं लोग. छोटे छोटे बोट्स बना के आते हैं. तो इस तरह का साइक्लोन में कभी कभी वो लोग एंटर कर लेते हैं. तो यहाँ पे इसीलिए इतना स्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है. हाँ, उन लोग को पकड़ने के लिए ये सब चीज़. यहाँ पे जो जेल है अधिकतर, वहाँ पे आपको ज़्यादातर वो बर्मीज और म्यांमारीज ही मिलेंगे आपको. अच्छा. वहाँ पे मतलब छोटा छोटा बोट बना था बैम्बू का. मतलब बैम्बू बहुत ज़्यादा मिलता है. बैम्बू का छोटा सा बोट बना के उसमें एक तरफ में किचन होता है, एक तरफ में बेडरूम होता है, और फिशिंग के लिए जगह होता है बस. वो उसमें पूरे 1-2 महीने तक उसी में रहते हैं वो. तो उस टाइम इन्होंने सिक्योरिटी पर्पस से बना के रखा था. ये बंकर, लेकिन ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट होगा? कनेक्ट नहीं होता था. जैसे अंदर बैठने के लिए जस्ट बंकर. कोस्टल सिक्योरिटी टाइट करने के लिए इसको रखा था. इसमें गनमैन आदमी खड़ा रहता था. और अगर फ्लाइट से ऊपर से बम भी पानी फ्लाइट से अगर बम भी गिरा ना, इसमें कुछ नहीं होएगा ना. ये जापानीज ने बनाया था. हाँ, जापानीज ने बनाया था. पूरा साउथ टू नॉर्थ अंडमान जितना भी कोस्टल साइड है, हर जगह आपको मिलेंगे ऐसे बंकर. कल हम लोग रात को जो रूट से आए ना सर, शीशों से, उसके बगल ही बहुत सारे 4-5 बंकर थे वहाँ पे. और आधा उसको डैमेज हुआ है, कुछ ऐसे ही पड़ा है. लेकिन सुनामी आया, पूरा रोड उखड़ गया, लेकिन वो बंकर कुछ नहीं हुआ. ऐसे ही वैसे ही है. अंबुजा सीमेंट है. फोटो 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 बंकर दिख रहा है. हाँ, अभी तो ऐसे ही.
Guys, we've stopped at this wonderful location. It's raining, it's pouring. Look at the water flowing over there as well. It's so freaking beautiful. Whoa. सनसेट व्यू पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोकोडाइल सेफ्टी का नो स्विमिंग जोन है इतने पानी में कैसे सी में मुंडा पहाड़ मुंडा पहाड़ मुंडा So we have reached a place called as Munda Pahad. This is also a very beautiful beach. यहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो that's where Chidiya Tapu is. But because it was raining, it was not possible for us to see the sunset. So we ditched the climb because it is raining and it was all slippery. So we didn't go. I any which ways didn't plan to go because I was not able to do it medically, but nevertheless we did enjoy these beaches. Here in this particular Port Blair beaches, we were not allowed to swim or have much fun because they have been crocodile sightings apparently, and it was not allowed for us to just deep dive into the beach itself. But yeah, we did take a lot of pictures just near the surface. जाने के जब नहीं लगने से रिटर्न पैसा दे देंगे वैसे खाके देंगे। क्यों क्यों नहीं वो तो नहीं जा रहे ट्रैक में ना बस यही घूम रहे हैं आप लोग वो लास्ट तक जा सकते हैं आराम से वहाँ आगे तक ना बस उसके बियॉन्ड नहीं जाना है आगे तक ट्रैकिंग का ट्रैकिंग पॉइंट वहाँ से वो जो दिख रहा है ना जो एरिया दिख रहा है ना हाँ तो लास्ट एक पॉइंट है टाइप का वहाँ से ऊपर चल जाना पड़ता है 1.5 किलोमीटर है। मैं इधर ही हूँ हाँ अगर जा रहे हैं तो आपको बुला लेंगे। Because the cyclone was passing, the weather was really unpredictable. There were moments of beautiful sun and then there was heavy rain pour. So, but we did definitely enjoy our first day. It was very pleasant in comparison to what we assumed to be a very hot weather. It was very pleasant, so we were very happy about that. We left from there and the next place we went to was Corbin's Cove, and this is the second beach in Port Blair. Here they used to allow people to play in the water, but recently they sighted a crocodile here as well, so we couldn't play here. And since it was raining, we returned because it was raining really heavy. बहुत कम ही रहता था यहाँ पे तो इसलिए वो लोग क्या करा पेट भरने के लिए जो लकड़ी का भूसी निकलता था ना वो खाते थे उस टाइम में जापानीज तो उससे भी ज़्यादा क्रूअल था बोलते ब्रिटिशर्स से भी ज़्यादा क्रूअल जापानीज थे ये वही बैटल ऑफ अबरडीन का बोल रहे हैं या फिर कौन सा बीच? नहीं जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल लेकिन फिर भी यार जापानीज तो और क्रूअल थे ना। हाँ और क्रूअल 3 साल था जापानीज लोग वो जो माउंट हेरिट बताया ना मैंने जहाँ जो सबसे टॉलेस्ट पीक है पोर्ट ब्लेयर का वो वहाँ पे उन्होंने पूरा अपना कब्जा मीन्स अपना जो कैंप बना के रखा था बेस बना के रखा था। ब्रिटिश गवर्नर का बंगलो था ऊपर में और उसके बाद में उनका 360 रिवॉल्विंग मिसाइल लॉन्चर था वहाँ में। अगर दूसरा कंट्री कोई भी फ्लाइट अंदर आया तो वहीं से मार के उड़ाया देता उसको कि वो वहाँ से पूरा एरियल व्यू मिलता था वहाँ से। ये हाईएस्ट पीक है भाई, इट्स द हाईएस्ट पीक पोर्ट ब्लेयर हाईएस्ट पीक ये है पूरे अंडमान निकोबार हाईएस्ट पीक नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक।
7 आवर्स मैंने ट्रैकिंग बताया था ना सर, वो एकदम बादल को टच होता है वो पहाड़। यहाँ का जितना भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, यहाँ पे इसको सनलाइट मिलता नहीं करके, ये क्या है ना, पूरा घना रहता है ना सर, तो सनलाइट लेने के चक्कर में ये लोग अपना हाइट को पूरा बढ़ा देते हैं। अच्छा, इसलिए ये सब पेड़ लंबे रहते हैं। अच्छा। और वहाँ जैसे आप ट्रैक करके ऊपर में जाएंगे, वहाँ पेड़ आपको इतने इतने साइज के मिलेंगे। एज उनका बहुत ज्यादा है, लेकिन छोटे छोटे पेड़ है, क्योंकि उनको सनलाइट इजीली कैप्चर हो जाता है। Like in one trip, you cannot do everything. You have to come one more to experience यहाँ पे 2 something. रिवर्स भी है, मतलब रिवर्स भी मिलते हैं यहाँ पे। दिगलीपुर जो आइलैंड है नॉर्थ अंडमान, वहाँ पे कलकोंग रिवर। साउथ अंडमान में आपको कैमल बे आइलैंड जो है, वहाँ पे गलाथिया रिवर। हाइड्रो पावर जनरेट करते हैं वहाँ से, और यहाँ सब डीजल जनरेटर से ऑपरेट करते हैं यहाँ पे करंट के लिए। इसीलिए पावर फ्लक्चुएशंस होते हैं ना थोड़ा। हाँ, देखा मैंने कल रात को भी 2-3 बार किया। ये सब तो दिख रहा है आपको शिप की टाइप का ना, ये सब डॉकयार्ड है, नेवल डॉकयार्ड है। फिर